Hello students, good morning. How are you all? Okay, so I hope you all are fine. Now, let's start our today's lecture. The next sum is miscellaneous exercise second, 10th sum, which is let capital A is equal to 1, 2, 3, 4, capital B is equal to 1, 5, 9, 11, 15, 16, and F is equal to 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5, 2, 11. Are the following true? Number 1, f is a relation from A to B. Number 2, f is a function from A to B. Justify your answer in each case. So we have given two sets, which is A and B, and we have given a relation f, and we check the two results. The first one is f is a relation, and the second one is f is a function. Okay, so let's start. Firstly, I given the details which we have given in our example and mention it. So here A is equal to 1, 2, 3, 4, B is equal to 1, 5, 9, 11, 15, 16, be given sets, and F is equal to this. I give it result number 1. So now for check number 1, F is relation or not, we have to find A cross B. That means the Cartesian product of A and B, and then we check all the elements of F is lies in A cross B or not. Okay, so firstly we find A cross B. Now A cross B is equal to A is 1, 2, 3, 4, and B is equal to 1, 5, 9, 11, 15, and 16. So Cartesian product of A and B, which is a simple, because we already teach how to find Cartesian product. So here firstly, one is pairing with all the elements of set B. That means we get 1, 1, 1, 5, 1, 9, 1, 11, 1, 15, 1, 16. Similarly, 2 is pairing with all the elements of B, and similarly 3 and 4. So we get this type of set in which all the pairs, and in which the first element is belong to our set A and the second element is belong to our set B, and I give it result number 2. Now let's verify or check that all the member of F lies in A cross B or not. Firstly, I talk about 1, 5. So let's see 1, 5 lies in A cross B or not. So we can see that 1, 5 lies in A cross B. Similarly, 2, 9 is also lies in A cross B, and we can see that 3, 1 also lie, and 4, 5 also lie, and 2, 11 which is also lie. That means we can see that all the members of F lies in A cross B. So finally we conclude that the F, that means the given we have given relation is a properly relation from A to B, because all the members of F lies in the Cartesian product of A cross B. इसका मतलब हम फाइनल कंक्लूजन कर सकते हैं कि जो हमारा F दिया है हमने क्वेश्चन में, जो सेट है हमारा F, मतलब उसके जो भी मेंबर्स है वो सभी के मेंबर्स हमारे A क्रॉस B में ऑलरेडी लाइज करते हैं. इसका मतलब हम फाइनल कंक्लूजन कर सकते हैं. देयरफॉर फ्रॉम रिजल्ट 1 एंड 2, जो F को मैंने रिजल्ट नंबर 1 दिया और A क्रॉस B को मैंने रिजल्ट नंबर 2 दिया, और दोनों रिजल्ट हम फाइनल जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट F इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B. मतलब F के मेंबर्स A क्रॉस B में लाइज करते हैं. सो हम ये हम लिख सकते हैं. देयरफॉर फ्रॉम दिस वी मे राइट F इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू B. मतलब जो हमारा F है वो रिलेशन है कहाँ से कहाँ तक, तो A से B तक, क्योंकि A क्रॉस B हमने फाइंड किया तो जो भी हमें मेंबर्स मिले वो सभी मेंबर्स में F के मेंबर भी ऑलरेडी आ ही गए हैं. ओके, सो आई होप ये रिजल्ट नंबर 1 हमारा हो गया. अभी हम बात करते हैं रिजल्ट नंबर 2 की. मतलब जो हमारा फंक्शन मतलब जो हमारा F है वो रिलेशन अभी हमने फाइंड किया कि रिलेशन है. अभी ये रिलेशन हमारा फंक्शन है या नहीं वो हम चेकआउट करेंगे. और कैसे करेंगे तो आपको पता ही होगा कि बाय यूजिंग अवर एरर डायग्राम. ओके, फ्रॉम द एरर डायग्राम वी मे चेक द गिवन रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट. So let's see. Firstly, I draw two circles, and in a first circle, I mention all the members of capital A, and in a second circle, I mention all the members of set capital B. So let's see. In a set A, I mention
1, 2, 3, 4. And in a set we have mentioned 1, 5, 9, 11, 15 and 16. And now connect each member of capital A with capital B. So we get 1 is connected with 5, 2 is connected with 9, 3 is connected with 1, 4 is connected with 5, and also 2 is connected with 11. Okay, students. So from the array diagram, we conclude that the given relation is not a function because of the member 2 of our domain. That means of our set A is related to more than one element. Okay, more than one element to our codomain or our set B. That means here f is not function from A to B because the element 2, that means our set A, which is our set A 2 of domain, has two images 9 and 11 in codomain. आपको पता है स्टूडेंट्स, हमने जब फंक्शन है या नहीं उसके लिए हमने 4 डायग्राम देखे थे बराबर. उसका वो हमारा जो तीसरा डायग्राम था वो यहाँ पे है कि फंक्शन होने के लिए नहीं होने का जो है उसका हमने डायग्राम क्या देखा था कि डोमेन का मतलब जो हमारा सेट है उसका एक मेंबर अगर एक से ज्यादा मेंबर्स के साथ रिलेटेड करता होगा हमारे कोडोमेन के मेंबर के साथ, तो वो हमारा फंक्शन नहीं होगा. वो जो भी रिलेशन होगा वो हमारा फंक्शन नहीं होगा. और यहाँ पे आपको ऐसा ही दिख रहा है, जो हमारा 2 है वो 9 के साथ भी रिलेटेड है और 11 के साथ भी रिलेटेड है. इसका मतलब हमारा जो ये रिलेशन तो हमारा फाइनल हुआ बराबर. जो हमें एफ दिया था वो हमारा रिलेशन तो फाइनल हुआ, पर वो जो रिलेशन हमारा फाइनल हुआ था वो हमारा फंक्शन नहीं हो सकता. ओके स्टूडेंट्स, सो ये रहा आपको रीजन. आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके स्टूडेंट्स, now the next sum is miscellaneous exercise second 11th sum. Let f be the subset of z cross z defined by f is equal to in a pair ab comma a plus b where a comma b belongs to z. Is f is a function from z to z? Justify your answer. We have given a relation which is f is equals to in a curly bracket a comma b curly bracket in a pair ab comma a plus b where a and b both are belongs to our set of integers. So let's check the given relation is a function or not from z to z. Okay students, so firstly I mentioned the given relation which is here f is equals to in a curly bracket ab comma a plus b where a comma b belongs to z be given. अभी हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम 2-3 पेयर क्रिएट करेंगे, मतलब 2-3 पेयर्स हम बनाएंगे बराबर. नाउ वी क्रिएट अवर 2-3 पेयर्स. उसके बाद हम क्या करेंगे, वो जो भी पेयर्स होंगे ना बराबर उसको हम एरे डायग्राम से ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा रिलेशन दिया है वो फंक्शन है या नहीं. जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया वैसा ही. हमारे पास एफ ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ही था, यहाँ पे हम एफ फाइंड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम उसको एरे डायग्राम से चेकआउट करेंगे कि है या नहीं. सो नाउ टेक a is equal to 0, b is equal to 0. क्यों हमने 0 0 लिया, क्योंकि बोथ आर बिलोंग टू अवर सेट ऑफ इंटीजर्स. उसका मतलब a भी हम सेट ऑफ इंटीजर सिलेक्ट कर सकते हैं और b भी हम उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं. तो मैंने दोनों का क्या सिलेक्ट किया, सबसे पहले 0 0 सिलेक्ट किया क्योंकि a is also belongs to z and b is also belongs to z. Take a is equal to 0, b is equal to 0. Therefore our pair ab comma a plus b is equals to 0 into 0, 0 plus 0. That means we get 0 comma 0. So we get first pair is 0 comma 0. Now move our next pair. Now take a is equal to 0 and b is equal to 1. Okay, अब मैंने क्या लिया, तो a तो मैंने 0 ही रखा, पर b क्या लिया मैंने 1 ले लिया. I select b is equal to 1. Okay, from our set of integers. So let's see. In a pair ab comma a plus b is equals to 0 into 1 comma 0 plus 1. So we get 0 comma 1 which is belongs to f. So हमने second pair भी हमने find out कर लिया. So हमने अभी अब क्या किया, हमने 2 पेयर हमने फाइंड किया. पहला पेयर क्या है 0 0 आया, दूसरा पेयर 0 comma 1 आया. ओके, तो f में हमने 2 पेयर फाइंड कर लिया बाय द डेफिनेशन ऑफ आवर f. नाउ अब हम क्या करेंगे, ये दोनों पेयर को हम एरे डायग्राम से ड्रॉ करेंगे और कनेक्ट कर देंगे. सो लेट्स सी. सो ये आपका डोमेन और ये हमारा कोडोमेन. ये z भी डोमेन है और z हमारा कोडोमेन है, मतलब कोडोमेन और डोमेन दोनों सेम ही है. चलो, तो डोमेन में मैंने एक 0 लिया क्योंकि आपको पता ही होगा कि इन अ पेयर फर्स्ट एलिमेंट इज बिलोंग टू अवर डोमेन. ओके, सो जो फर्स्ट एलिमेंट हम ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों सेम ही है, तो वो 0 यहाँ पे आएगा. और सेकंड एलिमेंट पे हम फोकस करेंगे तो एक पे 0 है और एक 1 है, तो मतलब 0 और 1 हम को डोमेन में मेंशन कर देंगे. तो आप देख सकते हैं ये 0 है फर्स्ट प्लेस पर, वो मैंने
फर्स्ट सर्कल में, और जो सेकंड पेज पर है 0 और 1 उसको मैंने सेकंड सर्कल पे मेंशन कर दिया, मतलब वहां पे लिख दिया। अभी मैं ये दोनों को कनेक्ट कर देता हूँ। 0 is connected with 0 and 0 is also connected with 1. So you see that, or you can see that the given relation is not a function, because the element of our domain is related to more than one element of our codomain, and that is not a condition for our function, for our relation is a function. Okay students, अभी प्रीवियस एग्जांपल में भी हमने देखा था कि एक एलिमेंट था बराबर डोमेन का, वो को डोमेन के दो मेंबर्स के साथ रिलेट कर रहा है। बस यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही आपको दिख रहा है। Here f from z to z is not a function because every element of domain has no unique images in codomain। मतलब कि हमारा जो ऐसा नहीं है कि एक ही, आगे कई मेंबर्स ऐसे होंगे जिसके हमें आंसर कोडोमेन में कितने दो इमेजेस मिल सकते हैं बराबर। इसलिए मैंने यह जनरल लिख दिया कि एवरी एलिमेंट ऑफ, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज नो यूनिक इमेजेस ऑफ कोडोमेन, मतलब यूनिक इमेजेस तो आपको नहीं मिलेगा बराबर, ऐसा नहीं होगा। इसलिए हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया हो। Next sum is miscellaneous exercise second 12th sum. Question is, let capital A is equal to 9, 10, 11, 12, 13 and let f from A to n be defined by f of n is equal to the highest prime factor of n. Find the range of f. So we have given of one set capital A and in which there are 5 members, which is 9, 11, 10, 11, 12 and 13, and we have given a function fn, f from n a to n, which is defined by f of n is equal to the highest prime factor of n. इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, हमारा जो सेट कैपिटल ए है उसमें से हम मेंबर हमारे फंक्शन में पुट करेंगे, मतलब 1 by 1, पहले 9 पुट करेंगे, फिर 10 पुट करेंगे, 11, 12 और 13, और जो भी नंबर हम पुट करेंगे ना, तो वो नंबर का हमें क्या फाइंड करना है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने 9 पुट किया, तो 9 के फैक्टर्स क्या पढ़ेंगे, तो 3 into 3 पढ़ेंगे ना बराबर, तो उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, ऑब्वियसली 3, क्योंकि उसमें जो हमने फैक्टर्स हमने अभी पढ़े बराबर, 9 के फैक्टर्स हमें क्या मिले, तो 3 into 3 मिले बराबर, तो उसमें हमारा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर मतलब विच इज डिविजिबल बाय 1 and itself, which is divisible by 1 and itself, which is called a prime number. Okay, so prime number क्या है, तो हमने जो भी फैक्टर्स हमने 9 के देखे, क्या देखे, तो 3 into 3 देखे, तो उसमें प्राइम फैक्टर क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा बराबर ना, क्योंकि प्राइम नंबर 3 है, क्योंकि 3 is divisible by itself and also 1. So firstly I mentioned the given set. Here a is equal to 9, 10, 11, 12, 13 be given set, and f from n to n where fn is equal to the highest prime factor of n. Now for n is equal to 9, अभी मैंने आपको 9 की बात करी, क्या बोला, तो f of 9 is equal to the highest prime factor of 9 is equals to 3, क्योंकि 9 के आप फैक्टर्स देखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 into 3 into 3, if I was not wrong, 1 into 3 into 3. So we can see that in which all the factors, the 3 is a prime number. Okay students, so highest prime factor of 9 is 3. Similarly for n is equal to 10, f of 10 is equal to, अभी हम 10 के फैक्टर्स क्या आपको मिलेंगे, तो 1 into 2 into 5 मिलेंगे बराबर, उसमें तो 2 और 1 तो नहीं आएंगे बराबर, तो क्या आएगा आपका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, तो 5 आएगा, क्योंकि 5 is a prime number which is divisible by 1 and itself. Okay, so similarly if we see for n is equal to 11, f of 11 is equals to the prime factor, highest prime factor of 11. अभी आप 11 के जो फैक्टर्स देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 into 11 ही मिलेगा बराबर, तो उसका आंसर क्या आएगा, itself 11 आएगा, is equals to 11. Similarly for n is equal to 12, f of 12 is equal to the highest prime factor of 12. सबसे पहले हम 12 के फैक्टर्स देखेंगे, क्या मिलेंगे, 1 into 2 into बोलो 3 into 4 बराबर, 1 into 2 into 3 into 4 मिलेंगे बराबर, क्या मिलेंगे, 1 into 2 into 2 into 3, yes, 1 into 2 into 2 into 3. So उसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, नहीं ना, क्योंकि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, हाईएस्ट मतलब जो बड़ा होगा बराबर, जो ग्रेटेस्ट होगा, सो हमारा क्या मिलेगा, उसमें भी 3 मिलेगा. सिमिलरली फॉर n is equal to 13, f of 13 is equals to
इटसेल्फ 13, क्योंकि 13 के फैक्टर्स हमें क्या मिलेगा 1 इंटू 13, और उसमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आपको क्या मिलेगा 13 मिलेगा। सिमिलरली 12 में हमने देखा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर आपका क्या था, तो 3 था ना, क्योंकि 2 तो 3 से छोटा है, बराबर ना, मतलब लेस है। सिमिलरली हमने 11 में देखा तो 11 इटसेल्फ ही आएगा, और 10 में तो देखा होगा तो आपको 5 इंटू 2 मिलेगा। 2 तो हाईएस्ट नहीं है पर लोअर प्राइम फैक्टर होगा, इसका मतलब हमें 5 आंसर मिलेगा, और सिमिलरली 9 में 3 मिलेगा। ओके, सो देयरफॉर द रेंज ऑफ एफ आर एफ इज इक्वल टू, जो हमें आउटपुट मिला, बराबर, वो क्या मिला हमें, रेंज ही मिला, क्योंकि हमने क्या किया, हमारा जो एलिमेंट है वो हमने हमारे फंक्शन में इनपुट दिया, और इनपुट देने के बाद जो हमें आउटपुट मिल रहा है ना, वो क्या मिलता है, हमें रेंज मिलता है, रेंज ऑफ एफ। सो ये सभी मेंबर्स को हम कलेक्ट कर लेंगे, और हमें उसको वी क्रिएट अ वन सेट, so we get the range of f is equal to rf is equals to y, where x comma y belongs to f, and we get 3, 5, 11 and 13. So this is your final answer, the range of f. Okay students, I hope you understand. समझ में आ गया? Okay, good. Now the next sum is miscellaneous exercise second, ninth sum. Let capital R be a relation from n to n defined by r is equals to curly bracket a comma b, where a comma b belongs to n, a is equals to b square. Are the following true? First one, a comma b belongs to r for all a belongs to n. Second one, a comma b belongs to r implies b comma belongs to r. And third one, a comma belongs to r comma b comma c belongs to r implies a comma c belongs to r or not. मतलब कि हमें जो रिलेशन दिया है फ्रॉम एन टू एन, बराबर, और ए और बी है, ए कॉमा बी, वेयर ए कॉमा बी दोनों क्या है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और हमारा रिलेशन क्या है, इज इक्वल टू बी स्क्वायर, बराबर। सो हमें ये चेक करना है कि अगर हम जो ए कॉमा बी है, बी के प्लेस पर भी हम ए रख देंगे, मतलब ए कॉमा ए, बराबर, बी हम रिप्लेस करेंगे ए के साथ ही, और हम चेक करेंगे कि हमारा रिलेशन ट्रू हो रहा है या नहीं। उसके बाद हम सेकंड में क्या चेक करेंगे, तो हम ये रिजल्ट ले लेंगे, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर ले लेंगे, और वही रिजल्ट बी कॉमा ए के लिए बिलोंग्स टू आर हो रहा है या नहीं। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो है ही, क्योंकि हमारा आर ए कॉमा बी में ही दिया है, मतलब हमारा बी कॉमा हम प्लेस चेंज करके देखेंगे तो हमारा रिजल्ट आर ट्रू होता है या नहीं, बिलोंग्स टू आर होता है या नहीं, वो हम चेक करेंगे। और सिमिलरली पहले दो रिजल्ट हम ले लेंगे बिलोंग्स टू आर, और थर्ड वन हम चेक करेंगे कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है या नहीं। चलो सबसे पहले here the relation r from n to n, r is equal to a comma b, where a comma belongs to n, a is equal to b square b, given relation. First one, for all a where small a belongs to capital N, a comma belongs to r. सबसे पहले मैं पहले की बात करता हूँ, for all a where a comma belongs to n, take a is equal to 4, मैं क्या लेता हूँ, a is equal to मैं 4 ले लेता हूँ, बराबर, a is equal to मैं 4 ले लेता हूँ। let a comma a belongs to r, 4 belongs to r, क्योंकि हमारा जो b का प्लेस है वो भी हमें a के साथ रिप्लेस करना है, बराबर, तो इनडायरेक्टली हमारा जो फर्स्ट प्लेस पे तो ए ही है, पर सेकंड प्लेस पे भी हमें ए रिप्लेस कर देना है, इसका मतलब यहाँ पे भी ए आएगा बी के प्लेस पर, बराबर, तो हमें क्या मिलेगा, 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर मिलेगा। समझ में आ रहा है? अकॉर्डिंग टू अवर रिलेशन वी मे राइट 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, क्योंकि बी क्या है, इनडायरेक्टली हमारा ए ही है, बराबर, ए के साथ हमने रिप्लेस कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे ए इज इक्वल टू 4 ही है, और वहां पे भी ए इज इक्वल टू 4 है, मतलब 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर मुझे मिलेगा अकॉर्डिंग टू अवर रिलेशन। That implies 4 is equal to 16, मतलब 4 स्क्वायर में 16 मिलेगा, और 4 is equal to 16 पॉसिबल है, 4 is equal to 4 ही पॉसिबल है ना, 16 तो पॉसिबल नहीं है। Therefore, which is not possible for all a where a belongs to capital N, a comma belongs to r, not true। मतलब जो हम फर्स्ट रिजल्ट है कि a कॉमा, अगर हम b के प्लेस पर a रख के देखेंगे, बराबर, जो b का प्लेस है सेकंड प्लेस, वहां पे भी हमारा फर्स्ट प्लेस ही रिप्लेस कर देंगे, मतलब एक जो बी है उसके प्लेस पे हम रिप्लेस क्या करेंगे, तो ए ही करेंगे, तो हमारा रिजल्ट बिलोंग्स टू आर हो रहा है या नहीं वो हम चेक करना था, पर बिलोंग्स टू आर नहीं हो रहा है, क्योंकि 4 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 16 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट ट्रू। सेकंड की बात कर लेते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, इम्प्लाइज बी कॉमा बिलोंग्स टू आर है या नहीं, उसकी बात हम कर लेते हैं। तो फॉर ऑल ए कॉमा बिलोंग्स टू एन, हम क्या ले, ए इज इक्वल टू 16 ले लेते हैं और बी इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं, बराबर, मतलब हमें क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट रिलेशन है ना, बराबर, वो तो हमारा सेटिस्फाई करेगा ही, बराबर, और सेटिस्फाई करेगा वैसे ही हम लेंगे, और अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशन हम क्या चेक करेंगे कि बी कॉमा है सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, क्योंकि हम ए कॉमा बी है कैसे लेंगे कि हमारा रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है ना, वैसे ही मेंबर लेंगे, बराबर, तो वैसे ही मेंबर मैंने लिए, क्या लिया मैंने, ए इज इक्वल टू 16 लिया और बी इज इक्वल टू 4 लिया, बराबर। द लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, 16 4 बिलोंग्स टू आर, मतलब 16 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, 16 इज इक्वल टू 16 विच इज पॉसिबल,
क्योंकि हमने सिलेक्ट किया ना a इज इक्वल टू 16 लिया और b इज इक्वल टू 4 लिया। क्यों ऐसे सिलेक्ट किया? क्योंकि हमारा फर्स्ट रिलेशन क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है, बिलोंग्स टू आर है, और उसके थ्रू हम क्या चेक करेंगे, बी कॉमा बिलोंग्स टू आर है या नहीं। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट विच इज गिवन इन अवर रिजल्ट नंबर 2 कि ये बिलोंग्स टू आर है, इंप्लाइज ये बिलोंग्स टू आर है, हो रहा है या नहीं, बराबर। सो यहाँ तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो गया। अभी हम क्या करेंगे, प्लेस चेंज कर देंगे, ए कॉमा बी है उसकी जगह पे बी कॉमा ए कर देंगे। नाउ बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, दैट इंप्लाइज 4,16 बिलोंग्स टू आर। मतलब अब हमारे ए जो हमारा स्मॉल है उसके प्लेस पे हमारा क्या है, 4 है, और बी के प्लेस पे हमारा 16 है। इसका मतलब 4 इज इक्वल टू 16 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 इज इक्वल टू 256, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, क्योंकि 4 इज इक्वल टू 4 ही होगा ना, 256 तो नहीं होगा। सो यहाँ पे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि ए कॉमा बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी कॉमा बिलोंग्स टू आर इज नॉट ट्रू, क्योंकि हम ए कॉमा बिलोंग्स टू आर तो हमने प्रूव कर दिया, बता दिया, पर वही हमने क्या किया, ए इज इक्वल टू हमने 16 और बी इज इक्वल टू 4 लिया, सिलेक्ट किया, तो हमारा फर्स्ट रिजल्ट तो हमारा आ गया, पर इंप्लाइज हमारा जो सेकंड रिजल्ट है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने प्लेस इंटरचेंज किए, इसलिए नहीं हो रहा है, बराबर। सो सेकंड रिजल्ट हमारा नॉट ट्रू होगा, फर्स्ट भी नॉट ट्रू है। अभी हम थर्ड की बात कर लेते हैं कि ए कॉमा बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। चलो, फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, लेट दोनों मैंने सपोज कर लिए, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अब हम दोनों की मदद से हम थर्ड वाला मतलब ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर हो रहा है या नहीं वो हम चेक करेंगे। सो ए कॉमा बिलोंग्स टू आर का हम क्या लिखेंगे, तो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर लिखेंगे, और बी कॉमा सी का हम बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अवर गिवन रिलेशन। भी मेरा ए कॉमा बी, तो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, और दूसरी बार यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, इसका मतलब यहाँ पे बी और यहाँ सी आएगा, बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अभी हम क्या करेंगे, ये जो बी की वैल्यू है ना वो यहाँ पे हम रख देंगे, बराबर। तो आप देख सकते हैं मैं बी के स्थान पर क्या ले लिया, सी स्क्वायर रख दिया, और होल स्क्वायर, वो स्क्वायर है वो ये, बी के स्थान पर हमने सी स्क्वायर रख दिया, और जो उसके बाद जो ऊपर स्क्वायर है वो तो है ही, बराबर। तो मतलब हमें क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू सी रेज़ टू 4 मिलेगा। हमें तो क्या चाहिए था, ए कॉमा सी का हमें चेक करना था ना, मतलब हमें ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर मिलना चाहिए था, पर हमें क्या मिला, सी रेज़ टू 4 मिला, मतलब स्क्वायर ज्यादा मिला। देयरफॉर ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर जो हमारा थर्ड रिजल्ट है वो भी नॉट ट्रू आएगा, बराबर। हमने ये कैसे चेक किया, तो हमारा जो रिजल्ट हमने दिया है क्वेश्चन में क्या, तो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, हमने इसके द्वारा हमने इसके थ्रू हमने ये तीनों के तीनों रिजल्ट हमने चेक किया। फर्स्ट रिजल्ट में क्या था, तो ए और बी दोनों के प्लेस है वो सेम ही है, मतलब ए और बी दोनों के वैल्यू सेम ही है, मतलब जो बी है वो हमारा इनडायरेक्टली ए ही है। दूसरे में क्या है, तो हमने फर्स्ट रिजल्ट तो हमारा सेटिस्फाई होगा वैसे हमने मेंबर लिए, पर फर्स्ट रिजल्ट से हमें क्या चेक करना है, हमारा सेकंड रिजल्ट मतलब बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो रहा है या नहीं। और सिमिलर हमने थर्ड में क्या देखा, फर्स्ट 2 रिजल्ट हमारा सेटिस्फाई कर रहे हैं वैसे हमने किया, और उसके अकॉर्डिंग टू और हेल्प ऑफ दैट 2 रिजल्ट वी चेक अवर थर्ड रिजल्ट कि ए कॉमा सी हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे भी ए कॉमा सी नहीं हो रहा क्योंकि ए इज इक्वल टू सी रेज़ टू 4 हो रहा है, पर हमें क्या चाहिए था, ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर चाहिए था, तो ही हमारा रिजल्ट सेटिस्फाई हो सकता था, अदरवाइज इज इट नॉट पॉसिबल। ओके स्टूडेंट, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके चलो, तो आज यहाँ पे भी हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम सिर्फ हमारा 4 या 5 एग्जाम्पल्स हमारे बाकी है, बस लास्ट 4 आई थिंक 4 सम्स बाकी है। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू।